Welcome back students to your SST class. So we are continuing with the chapter of history, that is SST Social Studies. Open your textbook page number 26. So we saw the Paleolithic age and the three types of Paleolithic age, that is Lower Paleolithic, Middle Paleolithic and Upper Paleolithic. Now it's time to move towards Mesolithic age, that is the second type of age. Yes, we saw that there were three types: Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. So Paleolithic we have finished. Now it's time to move towards Mesolithic. So before moving towards Mesolithic, there's one topic on page number 26 named as discovery of fire. So it's all about fire, that how fire was discovered and what were the uses. So it's a very short topic that I'm giving for self-study. You will read that paragraph and study it on yourself. If you find any difficulties, I'm always telling you can WhatsApp me. I'll go through it and solve your problem. Now see page number 27, that is Paleolithic age in India. Okay. So there's no much difference between the normal Paleolithic and Paleolithic age in India. It is same. So again that topic also you will do as self-study. Then see the Paleolithical art and culture. That also you will do yourself. So these are the topics that are given for self-study. You will do it by yourself. Now directly come to page number 29. Mesolithic age. So this is the second type of age. This we are going to see today. Now pay attention. The Mesolithic age or Middle Stone Age began with the end of Paleolithic age about 1200 years ago and continued till 10 years ago. This period saw important climatic changes because of the end of the ice age. हमने पहले ही देखा था कि पैलियोलिथिक के एंड के साथ साथ आइस एज का भी एंड हो चुका था, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी, तो बर्फ पिघलने लगी. These changes, तो बर्फ पिघलने लगी मतलब क्या, क्लाइमेट में भी चेंज आने लगा था. These changes brought a huge transformation in the lives of humans. Let's learn about these changes. As the ice age ended, the climate became warmer. In the warm climate, new plants varieties developed and grasslands increased rapidly. This provided more food to the grass-eating animals and thus increased their population. तो क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज के एंड में जो आइस एज था उसको आइस एज भी बोल रहे थे. वो आइस एज भी कम होने लगा था क्योंकि गर्मी बढ़ने लगी थी. वार्म मतलब गर्म होना. गर्मी बढ़ने लगी थी, बर्फ पिघलने लगी थी. फिर उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ पेड्स होते हैं, कुछ ट्रीज होते हैं कि वो स्पेसिफिक क्लाइमेट में ही आते हैं, है ना. जैसे कि पाइन ट्री वगैरह अगर हम बात करें तो वो बहुत बर्फ में आते हैं. वो नॉर्मल गर्मी में टेम्परेचर में नहीं रह सकते. लाइक वो हम कश्मीर में देखते हैं, माउंटेनस रीजन्स में देखते हैं. अगर हम हमारे नॉर्मल झाड़ों की बात करें तो वो ठंडी में सरवाइव नहीं कर सकते. ऐसा होता है. तो सेम थिंग क्या हुआ, पैलियोलिथिक एज में जो ट्रीज वगैरह थे उनको ठंडी की आदत थी, लेकिन मेसोलिथिक एज जैसे जैसे शुरू हुआ गर्मी बढ़ना स्टार्ट हो गई, आइस कम होना, आइस एज खत्म हो गया था. सो क्या हुआ, अलग अलग टाइप के ग्रासलैंड्स, पौधे ये भी उगना शुरू हो गए क्योंकि टेम्परेचर में चेंज आया. उसके वजह से जो एनिमल्स थे जो ग्रासेस खाते थे, ग्रास फीडिंग करते थे, हाँ, उनके लिए वो बहुत यूजफुल हो गया और इसलिए फिर एनिमल्स की भी पॉपुलेशन बढ़ गई और ये मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल हुई ये बात. Living with a rapidly increasing population of animals, the humans were now able to understand their food habits, behavior and breeding seasons. This helped them in domesticating animals such as dog, cow and goat.
Later, this animal proved immensely beneficial to the humans in many ways. तो पहले क्या था, ये डोमेस्टिक एनिमल जो थे ये कम थे, हाँ, तो इसलिए इंसानों को पता नहीं था कि वो एनिमल्स के हैबिट्स कैसे हैं, वो खाते कब है, उनका रिप्रोडक्शन कब होता है, ये सब उनको कुछ आइडिया नहीं थी. लेकिन टेम्परेचर अच्छा हुआ, एनिमल्स की पॉपुलेशन बढ़ने लगी, वो इंसानों के साथ रहने लगे, इंसान उन्होंने पालना लग गए इंसान उन्हें. तो धीरे धीरे इंसानों को उनकी हैबिट समझ में आई और फिर उन्होंने डोमेस्टिकेटिंग शुरू किया. डोमेस्टिकेटिंग शुरू करना मतलब एनिमल्स को पालना शुरू किया. कौन सा एनिमल्स? डॉग, काउ, गोट्स, इन सबको. ठीक है. और धीरे धीरे ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स इंसान के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुए. नेक्स्ट, द ह्यूमन discovered that grains of some plants such as barley and wheat could be used as food. Gradually, they learned the life cycle of these crops. They helped them start agriculture on their own. The beginning of agriculture was a revolutionary development in the Mesolithic age. Today, agriculture has become the primary means of survival for humans. So, ये मेसोलिथिक एज में और एक बहुत बड़ी बात हुई जो कि थी डेवलपमेंट या फिर इन्वेंशन. डेवलपमेंट नहीं बोल सकते, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब तक इंसान सिर्फ पिछले इसमें तक इंसान सिर्फ एनिमल्स को मारकर खाता था, उसको कुछ उगाते हैं, ये सब कुछ पता ही नहीं था. एग्रीकल्चर का ए भी इंसान को पता नहीं था. तो ये बहुत मेजर चेंज आया मेसोलिथिक एज में जो आज भी लागू है. आज भी हम एग्रीकल्चर करते हैं. इंडिया इज तो एग्रीकल्चरल कंट्री है. यस, द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर के बिना पॉसिबल ही नहीं है सरवाइव होना, राइट. सो मेसोलिथिक एज में क्या हुआ, धीरे धीरे बार्ली और वीट जैसे जो क्रॉप्स है, फसल जिसको बोलते हैं, उनके बारे में इंसान को पता चला. उसको पता चला कि वो सीड्स सो करने से उसमें से प्लांट आता है, वीट आता है, वो सब उनको वहां से पता चला और वहां से उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला और वहां से एग्रीकल्चर शुरू हुआ. कब से? मेसोलिथिक एज में से. ओके. The beginning of agriculture and domestication of animals brought about a great transformation in the lives of humans. For agriculture and rearing of animals, the humans needed to live at one fixed place. They took first step to move away from the life of hunter-gatherers. They built primitive houses in river valleys where plenty of water and fertile soil were available for agriculture. These developments contributed to the adoption of settled life by humans in Neolithic age. So अभी यहाँ पे दूसरी एक बात क्या हुई, सबसे पहली बात तो हुई कि एग्रीकल्चर का इन्वेंशन हुआ और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मतलब एनिमल्स को पालना और एग्रीकल्चर, ये दोनों चीजें हुई. उसके पहले वो क्या करते थे, एनिमल को मार के खाते थे. वाइल्ड एनिमल्स को पहले कच्चे खाते थे, फिर फायर का इन्वेंशन हुआ, उस पे खाने लगे बर्न करके. ऐसे फिर एग्रीकल्चर हुआ. ठीक है. तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की वजह से क्या हुआ, उनको एक जगह पे रहना पड़ता था. एग्रीकल्चर तो हम क्योंकि जहाँ पे फसल उगाते हैं वहां पे उसकी देखभाल करने के लिए हमें एक जगह पे रहना पड़ता है ना. पहले वो एक जगह पे नहीं रहते थे, आज यहाँ पे घूमते थे, कल वहां पे घूमते थे, परसों वहां पे, ऐसे वो घूमने वाले लोग थे. हाँ. हंटर्स और गैदरर्स मतलब हंट करने वाले, गैदरर्स मतलब जमा करने वाले. इस तरीके से चलता था. लेकिन अब क्या हुआ, एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन की वजह से वो सारा तो अपने साथ सब तरफ नहीं लेके जा सकते थे, इसलिए उनको एक जगह पे रहना ये आदत लगने लगी. फिर उन्होंने क्या किया, रिवर्स देखे और रिवर्स के साइड में घर बनाना शुरू किया. ओके. इसलिए क्योंकि रिवर का पानी एग्रीकल्चर के लिए काम को आता था, उनको भी पीने के लिए काम को आता था, एनिमल्स को पीने के लिए काम को आता था. और रिवर के बाजू की जो सॉइल होती है, मिट्टी, वो एकदम सॉफ्ट होती है, फर्टाइल होती है, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है. अगर पानी नहीं रहा तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी और फर्टाइल सॉइल नहीं रहेगी तो फसल नहीं उगेगी. तो ये सारे रीजंस की वजह से इंसान अब क्या सीखने लगा, सेटलमेंट होने लगी. मतलब एक जगह पे सेटल्ड. पहले वो सिर्फ घूमता था, अब वो सेटल होने
लगा। समझा यहाँ तक मेसोलिथिक एज क्या था और क्या सारे चेंजेस आए। उसके बाद टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज। टूल्स मतलब क्या वेपन्स वो यूज करते थे। हमने पैलोलिथिक एज के वेपन्स देखे, तीनों में अपर लोअर और मिडिल में अलग अलग थे। अभी मेसोलिथिक में अभी बट ऑब्वियस चेंजेस होंगे, क्योंकि अब क्या हुआ है, एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, तो एग्रीकल्चर के लिए कुछ ना कुछ वेपन्स तो चाहिए, डिगिंग के लिए, क्रॉप्स कटिंग के लिए, राइट। तो वो सारे उसमें दिया है। अगेन ये जो टूल्स है ये इतना कुछ हार्ड नहीं है, सो आप ये टॉपिक खुद पढ़ोगे, टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज, कि क्या क्या टूल्स उन्होंने यूज किए। ठीक है, सो दिस इज द टॉपिक दैट you will be doing for self study. ओके, देन उसके बाद आता है नियोलिथिक एज, वो हम देखेंगे। यहां तक सिर्फ मेसोलिथिक एज है। आई होप आपको समझा है दोनों भी, पैलोलिथिक और मेसोलिथिक एज। अब सिर्फ एक एज बाकी है, वो है नियोलिथिक एज, एंड देन फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो नियोलिथिक एज हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।